Hello everyone. So we were studying iterators in Python, and as we know, iterator traces या iteration हो रहा है, that means tracing हो रही है one by one. Okay, about the data values. ठीक. तो in Python, as we have seen few codes in the previous class, मेरे पास जो है iter नाम का. Okay, with the name iter, I am having a method. जैसे ये method है iter नाम का. ठीक है. तो वट एवर बी द वेरिएबल विच यू आर गिविंग, ठीक है, जैसे आपने इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट एक टपल बनाया, ठीक है, एंड आई आस्क्ड इट टू परफॉर्म द इटरेशन, ठीक है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट मेथड you are printing one by one elements of the tuple fruits, ठीक है, इटरेशन से कर रहे थे. List also we did created in the last class. We can print the elements of the list also. That's also ये भी हमने देखा. ठीक है, fine. Set also I told कि it's also possible with the iteration. Dictionary also I created. Okay, and you can iterate over the dictionary also. अभी तक हम loop से all these tasks we were doing. जैसे कि ये देखिए, if I'm having a string banana and I'm going to apply a loop for I in my string print I. So obviously it's going to print each and every character which is present in the word banana. Every character it will print. कर भी दिया उसने, ठीक है. अब यदि मुझे इटरेट करना हो, इफ आई वांट टू परफॉर्म द इटरेशन, तो देखिए लूप में इशू है. लूप को टर्मिनेशन चाहिए. अनलेस एंड अनटिल इट्स कंडीशन इज ट्रू, वो वर्क करता चला जाएगा. इट विल कंटिन्यू इट्स वर्क. Then it will terminate when the condition dissatisfied. Iteration में I haven't told about any condition, कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है, ना ही कोई टर्मिनेशन वाला कोई इशू है, ठीक है. यू आर हैविंग अ स्ट्रिंग बनाना, यू आर मेकिंग इट एस इटरेबल, आपने उसको इटरेबल बना दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट वन बाय वन यू कैन प्रिंट इट्स एलिमेंट. जैसे आपने नेक्स्ट इटरेशन यू अप्लाइड, तो इट विल प्रिंट बी. बस इसके आगे इट विल नॉट डू अनलेस एंड अनटिल यू डोंट प्रिंट दिस नेक्स्ट माइट वो आप नहीं करोगे, देन इट विल नॉट डू, है ना, खुद से कुछ नहीं करेगा वो. जस्ट वन टाइम इट विल डू एंड दैट्स इट. ये फायदा हो गया हमें, लूप में हम अटके ही नहीं विद द हेल्प ऑफ इटरेशन. अब जैसे कि देखिए, पाइथन फॉर एवरीवन, आई एम मेकिंग दिस स्ट्रिंग एज इटरेबल एंड आई एम प्रिंटिंग प्रिंट नेक्स्ट, ठीक है, करते चले जाइए, तो इट विल प्रिंट वन बाय वन. जितना करोगे, एज मैनी एज टाइम्स यू आर गोइंग टू राइट द प्रिंट स्टेटमेंट ना, दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड. दैट्स इट, यही होगा. तो ये भी काफी इजी कोड है. फाइन. नेक्स्ट है आपका, ये देखिए टपल. तो टपल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म यूजिंग लूप. ठीक है, ये आपका लूप से बन गया था, प्रिंट करा आपने, या आपने स्ट्रिंग को लूप से प्रिंट करा. ओके. हाउएवर however with the help of iterators and with the next statement, with the help of iteration and with the help of next, you can easily print one character या one value by one value. ठीक है. Now get to the important point. I need to use this iterator in class. अभी तो बहुत इजी था सर, यू कैन टेक एनी ऑफ द डेटा टाइप एंड यू कैन प्रिंट. अब आप क्लास में कैसे लगाओगे इसको? हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग इन अ क्लास? तो in class I can use iterator, I can implement iterator with the help of iter and the next, ठीक है, with the help of iter and the next methods. ठीक है, इसकी मदद से I can do iter and the next methods. Okay, अभी I have learned use iter in this way and next in this way. That means ऐसा. So far you have learned this thing, iter and next. अभी जब आप
you are going to talk about the class now, then you are going to use it like in this way: iter, okay, iter underscore underscore and underscore underscore next underscore underscore. This is how you are going to use the iteration in the next in the class, because obviously, we have seen the similar concept in classes related to your init method and related to your str method. Similarly, iter and the next can be used in this way only. Huh, unka concept will remain the same. Okay, that means iter will act similar to the operation initialization, and it always return the iterating value. It always return. Okay, let me convert it into a better option. Okay, here is the markdown and let me run the code. So here it is. So iter method acts similar as we have seen. That means it's going to take out the next value. Okay, but it must return an iterable object itself, and the next is going to do the next operation. That means iter method is making any object iterable. It is converting any object iterable, and with the help of next we are going to print the next item of the sequence. So convert this thing into a sequence format with the help of iterator and then print the sequences. Okay, so in Python we are having classes and the objects, and all classes having a function in it which allows for the initialization of the object. So with the help of init method we initialize the object. Done. After object initialization, we can make that object iterable, and then with the help of next we can print the values of those iterable objects. That's what we can do. कर सकते हैं हम ये काम. All right, so let us consider a simple example. Here is my simple example: class my numbers. Okay, this is my class, and I have defined a method def underscore underscore iter underscore underscore self. Okay, I have created an iter method जिसमें सेल्फ आएगा. सेल्फ क्या है? व्हाट विल बी द सेल्फ? सेल्फ विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास माय नंबर्स, जिसको मैं इटरेबल बना लूंगा. आई विल मेक इट एज इटरेबल by giving the self inside iter method. I will make it as iterable, बना लूंगा. And then what I did, self dot a equal to 1. That means I have declared a variable a, initial value is 1. Its initial value is 1, I assigned. ठीक है, ये करा. फिर मैंने बनाया next method. Again I gave self here. Again I gave self here. Okay, and then what I am doing? What I am doing? X equal to self dot a plus equal to 1. That means I am trying to update. I'm trying to update the value of whose value? Value of x here. That's what. X. हाँ, that's what I want to do. X का वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ बस. तो नेक्स्ट में यही होता है ना, प्लस वन होता है. ओके, तो what you did here, you make an iterable object, then define a variable x, and then perform the इटीरेशन या नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको. ठीक है, अभी इतना वी डिड क्रिएटेड इन द कोड. री एक्सप्लेन करूंगा वापस से. देखिए, हियर यू मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का. दैट इज माई क्लास, है ना. ये ऑब्जेक्ट बन गया. तो इनिट मेथड तो वी डोंट हैव, है ना. इनिट है नहीं, तो भाई उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया इनिट, एंड इट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. Then in the next case I made this object iterable with the help of iter method, है ना. ये that's what I need to do now. So I made this object of the class as iterable and I named it as my iter. I named it as my iter. When you make this object iterable, so iter and next, they will also get called. Okay, they will also get called.
with this particular phenomena. Okay, क्योंकि as like initialization, as like str, इटर एंड नेक्स्ट, ये भी क्लास के ही मेंबर्स हैं. दीज आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास. ठीक है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास. तो ये भी कॉल होंगे. तो व्हेन आई क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बना, इनिशियलाइज हो गया, आई मेड इट एज इटरेबल, इटरेबल बना दिया. व्हाइल मेकिंग इटरेबल, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, जो माई क्लास है, ये जो सेल्फ है, माई क्लास इज एन ऑब्जेक्ट, इट विल बी रेफरेंस्ड विद द हेल्प ऑफ अ सेल्फ. तो सेल्फ डॉट ए इक्वल टू वन एंड रिटर्न सेल्फ, दैट मीन्स आपने सेल्फ का वैल्यू या ऑब्जेक्ट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हैव गिवन इट एज वन, वन दे दिया आपने. फिर आपने, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल वन दिया है, ऐसे नहीं. a डॉट ए इक्वल टू सेल्फ डॉट ए इक्वल टू वन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज वन, ये दे दिया आपने. हियर इन नेक्स्ट ऑपरेशन व्हेन यू केम, यहां पर यदि आप आए, तो ये आपका जो सेल्फ डॉट ए है, यू असाइन इट टू अ वेरिएबल एक्स, उसको दे दिया आपने, एक्स को आपने असाइन करा, एंड यू आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ योर ए, कर रहे हो सेल्फ डॉट ए ने, इसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू आप क्या कर रहे हो, बार बार अपडेट कर रहे हो, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो एज मेनी एज टाइम द नेक्स्ट विल बी कॉल्ड, as many as times the value will be updated, x का value will be updated, and here you are returning the x. So मैं यहाँ क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू कॉल नेक्स्ट इटर. तो ये अभी अपना वन प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट वन. देन इफ आई कॉल अगेन नेक्स्ट इटर, तो अब ये क्या हो गया, अपडेट हो गया. ठीक है, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा. ठीक है, दैट विल बी टू, वन प्लस वन दैट विल बी टू, तो टू प्रिंट करेगा. तो एज मेनी एज टाइम्स यू आर राइटिंग इटर हियर, उतने टाइम वो क्या करेगा, अपडेट करेगा अपना वैल्यूज का अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कोड. तो बहुत स्मार्ट तरीके से जो है यहाँ पर द कोड हैज बीन डन, बिकॉज यू नो देयर देयर माइट बी सम टर्म्स जो कि कंफ्यूज कर जाए. वो क्या होगा, व्हाट टर्म्स मे कंफ्यूज यू, यू विल से सर ओके दिस इज माय क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया. आपने यू मेड दिस थिंग एज इटरेबल, इटर बनाया आपने, यू मेड दिस थिंग एज इटरेबल, तो ये मेरा इटर हो गया, माय इटर बनाया. एंड जब आपने इसको इटरेबल बनाया, ओके, तो वो गया इटर के पास, सेल्फ इज द रेफरेंस, सेल्फ इज द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, गया सेल्फ डॉट ए इक्वल टू वन, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू वन. देखिए भाई, आप ऑब्जेक्ट को, स्वयं को कोई एक वैल्यू असाइन नहीं करते. रिमेंबर, you can't say that object is taking, you can't say that sir self equal to वन, नहीं, self object है भाई, self is a मतलब it's a reference to the object, so we are not assigning that value of object equal to one, rather than we do take self dot a equal to one. यानी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है वेरिएबल्स को, इट कैन एक्सेस द वेरिएबल्स. सो a is a variable, so we can assign a value to a variable by using self dot a equal to वन. ये कर सकते हैं अपन, self equal to वन नहीं लिखेंगे हम, या here also we will not write that कि my class equal to वन, नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं हम. वेरिएबल को ही असाइन किया जाएगा वैल्यू. सो हियर विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट ए करके आपने वन कर दिया उसको. ठीक है, तो ये असाइन, यू आर रिटर्निंग सेल्फ, यानी ये हुआ, इट इज बीन डन टू वन. Okay, your object is having a value 1. Okay, yes sir, ask the question. Your object is having a value 1. Yes Kiran sir, ask the question. Okay, might be by mistake. All right, so here, after returning the value of self, because obviously it will become 1, its value is written. Now I am going to the next method. Next method, whatever be the value of self dot a was, it was actually 1, so that will be assigned to x, and I am updating the value of self dot a, so obviously it will automatically update the value of x. Whatever you are updating here, that will be updated in x. क्यों? Because it is a reference.
It is a reference variable. Self dot a is a reference variable because it is associated with self. Self is an object, reference to the object. So obviously whatever be the changes done here, that will be reflected here. And self dot a plus 1 plus equal to 1 will update the value of x. Okay, and here you are, as many as times you are calling this method now, it is printing you the value. That's the basic code, how to use iter and next in the classes. Similarly, I am having one more code. For example, let me take a and b. Okay, so I am having my numbers and I am taking two variables a and b, and I am returning self. I am returning self. Okay, so I am having a as 1, b as 2, and I am returning self. Okay, then I am taking next, and I'm taking y equal to 10 as a variable here, and I'm saying x equal to self dot a. So a is 1, so now x will become 1. Then what I'm doing, self dot a is equal to self dot b plus self dot a plus 10. Okay, plus 10. That means I'm adding the value of a, b, and 10 to it. I'm not using y anywhere. Okay, but I don't know how I did this created. So I can delete it. Okay, so what I'm doing, I'm assigning the value of x and I'm saying that self dot a equal to self dot b plus self dot a plus 10. ठीक है, तो initial value of x will be what will the initial value of x, it will be 1. Now what you are doing with the x, you are adding a which is 1, b which is 2 plus 10. So the new value of a will be 1 plus 2 plus 10, 13. Return x. Okay, so it start with 1. Okay, it will start with 1. Self dot a is 1 na? So it will start with 1. Then if you call the next, it will calculate such value and return it. So the next is 13. Then what will be the next value, because now a will become 13. So अभी a 13 हो गया. Okay, a will become 13. All right, then what will be the next values? So it will be 13 plus 10, 23. B was 2, so it will become 2 plus 13 plus 10, 25. Next is 25. Similarly again 25, a will be 25, so 25 plus 2 plus 10, 37, and so on it will do. So now I have some idea. Let me get back to this particular code, and I have some idea. Why shouldn't we print these values inside only? Okay, just go with the very basic. Okay, what I did, uh, this is my numbers class. I am having iter object here. Okay, self dot a equal to 1. Before returning self, let me print self. एक बार एक आइडिया तो ले लो क्या है. Let us check. Self को print करता है. And once I assigned here x to self dot a, let me print x also. What is actually x? Let me print it. Okay, and then here also print it. After the upgradation, let me print here x also. Let's check. Okay, just do some random, okay, printing of the variables. Let's do it. Okay, so this is my class. Okay, I created the object of the class. I made the object iterable. Okay, let me put comment on each and every of them, because first of all I want to check कि when my object is created and when iter is done. That means when my object is created, when I'm making the object is iterable, thus during this phenomena the call of iter and next is happened or not. I just want to put a check, so let me run the code. There was a call to gaya. There was a call, and the call was for my number object has been created at this reference position. It's an address. So there was a call.
तो एड्रेस है ना, क्योंकि दैट्स व्हाट आई से ना, कि द क्लास विल ओनली गेट द मेमोरी व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, हियर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑब्वियसली इट रिक्वायर अ मेमोरी। ओके, उठा लिया उसने, माई नंबर्स ऑब्जेक्ट, इट टुक अ मेमोरी, ले लिया उसने। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे अब, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, if I print this statement, print next iter, let me run the code. I am getting 1 1 1, how? तो फर्स्ट क्या हुआ, iter वाला was called, iter was called, so I printed self, so the value of self is how much, 1. If I say सर एक काम करते हैं सर, सेल्फ को ही 1 करते हैं rather than a, now run the code sir, it will throw error, iter returned non iterable type int। ऐसा नहीं हो सकता, इटरेबल किसको करते हैं, देखिए यहाँ पर उसने एरर दे दिया, यार इट गेव एन, ये जो रिटर्न करा था, इट रिटर्न सेल्फ, इट रिटर्न सेल्फ, उसने इसको रिटर्न करा। तो ओके, एक काम करो, रिटर्न मत लो सर, डोंट टेक अ रिटर्न, ना रन द कोड। कहाँ पर था, हाँ रिटर्न हटा दिया। नाउ इफ यू आर रिमूविंग रिटर्न ऑल्सो, इट इज सेइंग कि स्टिल रिटर्न तो हो रहा है, देयर इज समथिंग विच इज रिटर्न एंड दैट इज नन टाइप, देयर इज समथिंग रिटर्न बट विच इज नन टाइप। ओके, ये लफड़ा हो गया, तो आई नीड टू रिटर्न सेल्फ, आई नीड टू डू दैट, करना पड़ेगा, आई नीड टू रिटर्न सेल्फ, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, एंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इज 1। ओके, इफ आई से सेल्फ, यदि मैं करता हूँ रिटर्न, लेट्स सी, स्टिल स्टिल वो इश्यू आ गया, सो सेल्फ डॉट ए करना पड़ेगा मुझे, देन ओनली इट विल वर्क, दैट मीन्स आई रिक्वायर सम वेरिएबल टू असाइन द वैल्यू, self dot a equal to 1, then it will be print self, then it will return the self, ये कर देगा वो, it will do, all right, fine. So हाँ, इधर इधर इसने सबका 1 1 इट प्रिंटेड, 1 1 इट प्रिंटेड, हियर ऑल्सो इट प्रिंटेड x, its value is 1, here also it printed x, its value is 1, so all the values now 1 it printed. Okay, and if I remove this hash 2 2 and all this thing, so now the next value will be 2. Okay, अपडेट हो गया वो, यहाँ पर अपडेट हो गया, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 2 ऑफ द ए, तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो, अब नेक्स्ट को कॉल करेगा वो, अब इसका वंस इटरेशन इज डन ना, वंस यू हैव मेड एन ऑब्जेक्ट इटरेबल, दैट्स इट, नाउ इट विल कॉल नेक्स्ट, इट विल कॉल नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने इसको 1 कर दिया था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू वाज 1, नाउ इट इज कॉलिंग नेक्स्ट ओनली, सो हियर ना नेक्स्ट मैंने इसी को कॉल कर रहा है वो, ओनली दिस थिंग, सो इट प्रिंटेड 1, इट प्रिंटेड 1, ठीक है, एंड देन व्हेन यू आर कॉलिंग नेक्स्ट करोगे तो इट विल अगेन, इट विल प्रिंट 2 2, अपडेटेड हो गया, अपडेट हो गया वैल्यू, ओके, इट विल डू दैट। ओके, फाइन, सो ऐसे जो है वी हैव टू वर्क अपॉन। सिमिलरली यहाँ पर ए था, बी था, okay, and then I'm following the next, so once you assign the values of a and b, that is the initial assignment, later on you can use next to update. Okay, here also let me take an let me take another code. Okay, this is class sum, class sum, I need to calculate the sum of numbers. Okay, class sum, so define iter and create a variable num equal to self dot num equal to 10 and return it.
ठीक है, जस्ट एज वी डिड अबाउ, है ना, जस्ट क्रिएट दिस थिंग एंड देन परफॉर्म नेक्स्ट. इन द नेक्स्ट इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू ना, यू कैन डू next, you know, whatever you want to do you can do in the next. So whatever this self dot num is, I'm assigning to x, this is my y, and I'm doing x plus y plus self num equal to self num. That means my x will be self num, that is 10, so my initial value will be 10, y is 20, and this is self num, so 10, so 10 plus 20 plus 10, return x. Okay, return x. What it will return? What it will return? 10 plus 10 plus 20, 40. But what will be the पहला वैल्यू क्या होगा? What should be the first value? पहला वैल्यू तो ये है ना आपका self dot num का. What is the first value of self dot num? वो तो 10 है. तो 10. हाँ, तो पहला वैल्यू तो वो 10 प्रिंट करेगा. उसके बाद की कहानी है आपकी नेक्स्ट की. The first value of your self is 10, so it will print 10 first. The later on, whatever be the operations you have assigned here in the next, that will work. ठीक है, that will work. So it is 40, so after 10 it will print 40. Now next, so x अब कितना हो गया आपका 40, तो 40 and then ये क्या हो जाएगा self dot num, what it is, मुझे लग रहा 40 40 हो जाएगा दोनों. ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा, 40 40 और ये तो 20 है ही, तो 100 हो जाना चाहिए. आंसर इज 100. ऐसा हो गया. फाइन, दिस इज हाउ इट डस. Okay, and you can as many as times you can iterate, and it will print you the values. Okay, fine, तो करते रहेगा. If you want to make a small code also, okay, let's check some small code. हम बनाते हैं class add. Let's make a class add. ठीक है, and make df underscore underscore iter. Make object of the class as iter, self. बना दो, self बना दिया हमने. आफ्टर दैट इफ आई से सर मुझे मेरे पास कुछ है नहीं सर, आई डोंट हैव एनीथिंग, पास. ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग, एसेट पास. देन आई एम सेइंग df underscore underscore next underscore underscore self. Here I am taking self, and here I am saying self dot a equal to 1, self dot b equal to 2, self dot c equal to self dot a plus self dot b. Okay, that's what I'm seeing. Okay, fine. ये करा, and then self dot a equal to self dot a plus 1, यानी a को मैं अपडेट कर दूंगा, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा, एंड सेल्फ डॉट बी इक्वल टू सेल्फ dot b is also a plus 1. Okay, so whatever be the addition you are doing now, that you will do one by one. ठीक है, यानी कि इनिशियली इट विल ऐड 1 and 2 and make cs3, and then a value of a will be update, b will also update, so a will become 2, b will become 3. Next time when again it will add, so 2 plus 3, 2 plus 2 plus 3, it will become 5, and again there will be plus 1 updation in next. But abhi there is one issue here in case of iteration. Here in case of iteration I did pass, so abhi doubt है मुझे whether ये कोड जो है वो रन होगा कि नहीं होगा. So let us do one thing.
लेट अस क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी या हाँ, ओके, ओ इक्वल टू एड, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड मेक दिस एज इटरेबल। इसको इटरेबल बना लेते हैं अपन, ठीक है, इटरेबल बना लेते हैं। सो कॉपी, मेक दिस ऑब्जेक्ट एज इटरेबल। ओ, हो गया इटरेबल। नाउ लेट मी रन द कोड, यहीं से करता हूं पहले। इट थ्रोन एन एरर, इटर रिटर्न नन टाइप। That means here I want to return something. If you are making this as iterable, it should return something. But what should it return? That's a question. वो क्या रिटर्न करेगा अभी मुझे पता ही नहीं है। What it should return? What it should return? I said pass, कुछ it haven't written anything. तो जब भी iterable बनाओगे उससे कुछ ना कुछ मुझे वापस लेना है according to my statement, according to my definition। क्या बोला था इसने? Here the iter method acts similarly, you can do the operations, but it must return the iterable object itself। it must return the iterable object itself। तो क्या return करेगा वो? What it is going to return here, that is something which is important when I say pass it throw an error। so मैं ले लूंगा for example I say self equal to 1, ये भी नहीं ले सकता था मैं। I need to write self dot num equal to 1, okay, and then I will say return sum, return self। ठीक है, ये कर दिया। दैट मीन्स नाउ इट इज रिटर्निंग समथिंग। वो रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलो रिटर्न पे ले लो। ठीक है, लिया। नाउ देर इज नो एरर। वो बोल रहा है ठीक है भाई, यू हैव रिटर्न समथिंग ना, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद यू। ओके, नेक्स्ट है आपका आई कैन यूज दिस थिंग। लेट मी let me use these things, let me use these things and check whether the code will run। ये देखिए, अब क्योंकि भाई उसने अभी देखो क्या हो गया, इट रिटर्न नन, इसने नन रिटर्न करा। वाई? बिकॉज द इटरेबल ऑब्जेक्ट वॉट एवर बी द वैल्यू इट इज बिन टेकिंग, ये तो क्या क्या था, वन था। मैंने सेल्फ डॉट नम का यूज कहीं करा ही नहीं। आई शुड हैव राइट सेल्फ डॉट नम, ये लिखना चाहिए था मुझे। इफ आई से चलो लिखते हैं, सेल्फ डॉट नम लिखते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। स्टिल इट इज सेइंग नन नन नन। आपके पास अब स्टिल यू डोंट हैव एनी आंसर्स, स्टिल यू आर हैविंग नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है। तो एक काम करिए सर, एक काम करिए, यू कैन टेक a variable x, then you can say कि sir whatever be the value I got from above, okay, x equal to self dot num, वो आप इसको असाइन कर दो x को, and then you update the value of x like this। ऐसा करो, अभी भी नन देगा। ठीक है, एम आई रिटर्निंग, अच्छा मैंने रिटर्न भी नहीं करा, रिटर्न x ये करना चाहिए था मुझे। चलो वेट करो, इसको भी हटाओ, हटा दो इसको। एक्स, ठीक है ठीक है, ओके लेट्स सी। एवरी टाइम उसने 3 रिटर्न कर दिया आपको, इट रिटर्न 3 एवरी टाइम। दैट मीन्स देयर वाज नो अपडेशन हैपेंड, नो अपडेशन हैपेंड, इट रिटर्न 3। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट था मेरा नम, मुझे लग रहा है यदि उसको यूज करता है यहाँ पे तो वो कुछ कर सकता था एक्स का। ओके, लेट मी यूज सेल्फ डॉट नम हियर। नाउ लेट्स चेक आउट द रिजल्ट। अब उसने 4 कर दिया, नाउ इट मेड इट 4। Why it made it 4? Because this was 1, this was 2, this was 1, it returned x। उसने उसको 4 कर दिया तो x का वैल्यू 4 हो गया। बट ये क्या है, एवरी बट व्हेन आई परफॉर्म द इटरेशन स्टिल वो मल्टीपल टाइम्स इन नेक्स्ट कॉल हुआ, एवरी टाइम इट इज टेकिंग क्या 1 ओनली, नम एवरी टाइम 1 रहा। और ये नीचे जो अपडेट हुआ, देयर वाज नो अपडेशन सीन, कुछ अपडेशन ही नहीं हुआ। उसने 4 4 4 4 और एवरी टाइम इट प्रिंटेड 4। That means every time the value of A was 1, B was 2, S self was 1। ना तो ये काम करा, it doesn't worked, this thing doesn't worked, और ना ही मुझे num में अपडेट मिला, num was also not incremented। ओके, ये भी इशू आया, it was not updated।
ओके, तो भाई ऊपर वाले कोड पे चाहिए, रिफर करिए। यू टुक सेल्फ डॉट नम एंड यू अपडेटेड द नम ओनली। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह टेक सेल्फ डॉट नम एंड रिटर्न सेल्फ, इसको कर दें रिटर्न सेल्फ, या आपने, ठीक है, उसको किसी को असाइन, लेट मी रन द कोड नाउ। इट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा, यानी कि यू हैव टू असाइन दिस वैल्यू टू सम वेरिएबल, किसी को असाइन करो आप। सो लेट मी से x इक्वल टू सेल्फ डॉट नम एंड देन रिटर्न x हियर, x को रिटर्न करो। नाउ सी, अब ये कर रहा है काम, ना इट इज वर्किंग, यानी कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस क्या क्या चीजें सीखने को मिला, व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम हियर। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव लर्न दैट वी हैव टू असाइन सम वैल्यू टू द इटरेटर, स्टेप नंबर वन। इफ यू डोंट असाइन, यदि नहीं करोगे यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर 100 कर दिया, इनिशियली असाइन 100, तो पहला वैल्यू इट विल पिक अप 100 ओनली। It's up to you. Okay, it's up to you whatever value you are going to. This is my first value of the iterator. Later on you are applying next. तो इसने क्या करा, नेक्स्ट में self dot num, that was 100, you gave to the x, that was 100. Then you took a and b as two variable inside next, ठीक है, okay, that those values are 1 and 2. This is 1, this is 2, this is 100, है ना, सेल्फ डॉट नम वॉज 100, सो 1 प्लस 2 प्लस 100, 103, ठीक है, ये 103 हो गया, 103 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन है ये मेरे काम ही नहीं कर रहे हैं, दीज टू ऑपरेशंस आर नॉट एट ऑल वर्किंग। क्यों, वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सेल्फ डॉट ए और बी को बार बार रीअसाइन हो जाएंगे वो 1 1 पे, तब ये काम नहीं करेंगे, यानी इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल स्टेप फॉर मी, नॉट एट ऑल यूजफुल। क्यों, क्योंकि वो अपडेट कर भी रहा है, इफ इट इज अपडेटिंग, व्हेन यू अगेन कॉल दिस मेथड, तो वो वापस से ए और बी को 1 और 2 असाइन कर देगा। या आप लोगों में से किसी ने भी, नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग सर, कि वो अपडेट क्यों करेगा, हाउ हाउ इट विल डू द अपडेशन। You are reassigning the value of a and b is 1 and 2 again and again. So if it update here, कर रहा है वो अपडेट तो कर रहा है below यहाँ, it is updating, but when you call this method again ना, तो वो वापस से असाइन कर देगा a और b को 1 and 2। तो what makes a sense, कोई सेंस बचा ही नहीं अपडेट करने का। ओके, तो भाई यू शुड हैव टोल्ड मी सर, कोई नो सेंस फॉर देयर, आपने बोला नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई ऐसा है, सेल्फ डॉट नम लोगे, ये नम, सो इसी का वैल्यू यू आर गोइंग टू अपडेट, और आखिरी में रिटर्न यू हैव टू डू एक्स। So you know whatever be the initial value of the iterator, you are picking up here in a variable x. You are performing the operation over this object only, self.num, whatever you want to do, and then you are returning x, which is your x equal to self.num. That's what you are returning. If you say, sir, can we return self.num? क्या हम इसको कर दें? Can we return self.num? Can we do that? Then also it is perfect, no worries. For example, sir, don't take this thing, just run this code, then also it is perfect, no need to take x equal to cell dot direct. Okay, this variable is now iterable, so just pick it here and iterate it. Okay, so अब ये भी हटा दो, मेरे को तो ये इनका भी जरूरत नहीं है, अब रिमूव दिस थिंग्स, हटाओ इसको, just write like this, some self dot num equal to self dot num plus 1. Okay, run this code, 101, 102, 103, 104, 105, बस ये लॉजिक है। सो असाइन अ वैल्यू टू द इटरेबल वेरिएबल, इसको असाइन कर दिया, और यहां पर यू कैन इंक्रीमेंट इट, उसको इंक्रीमेंट कर दो। सो रिमेंबर व्हाट शुड बी इन योर माइंड, दिस इज माय इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड हियर आई एम इटरेटिंग इट, इन द नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट में दिखाना है, और यहां पर उसको
डिफाइन करना है. If you say, sir, can't we perform this operation here only, sir? Why you are making next? Why you are making, भाई ये काम तो next में ही होगा ना. If you do this thing here, कर सकते हो. Okay, you if you want you can do this thing. ये लो करो. Okay, you can do this thing. So initially it was 100. This will be 100 plus 1 is 101. That will be 101. ठीक है. And then again it updated to 102 and then it is returning 102. That's what happened. ठीक है. तो your first answer is 102, 103, 104 and so on. Okay, so MCQ questions may come. What is the output of the code? So you should be having a knowledge. Okay, iter hai, when to assign, when whom I'm going to iterate. So iteration object ka ho raha hai, iterable object ka. Okay, so and now next, for example, now this is another code. You did some modification in this code. What is the modification? Again, you created a class my number. You created an iterable object. You assign its value as 1. You're returning it. Okay. So the object value is 1. Okay. Iterable object value. In next, if you're saying if self dot a is less than 20, for example, if this is less than 20, x equal to self dot a या self dot a equal to self dot a plus 1, इसका भी जरूरत नहीं था मुझे. I don't require x. I can return this value itself. Okay. So if until your value of self dot a is less than 20, it will update. It will do next. It will do the next. ठीक है. अब देखो क्या करा है आगे. Return self dot a. ठीक है. If this condition is true, return self dot a. Else raise stop iteration. So stop iteration is already present in my Python. पहले से ही है. Once the condition failed, it will raise stop iteration. ओके. तो कंडीशन फेल होने के बाद ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. ऑल राइट. ठीक है. तो क्या हुआ? आई क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. आई मेड इट इटरेबल एंड देन आई अप्लाइड अ लूप फॉर एक्स इन माई इटर. लूप लगा दिया. अरे भाई लूप नहीं भी लगाते तो आप ये कर सकते थे. इट डजेंट मैटर. यू कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज दिस थिंग. ओके. डोंट अप्लाई लूप. यू कैन यूज दिस थिंग. ठीक है. इसको माई इटर ना करते हुए इट कर दो. इट कर दीजिए एंड रिमूव दिस कोड. ठीक है. एंड रन इट. हाँ. इनवैलिड सिंटेक्स एल्स. यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स एल्स के लिए आया है. ओके. इफ का इफ शुड बी विद द एल्स हियर. ठीक है. ये होना. इट शुड बी हियर एंड ये है. ऑल राइट. हियर आई एम गोइंग टू इफ दिस इज रिटर्न सेल्फ डॉट. ऐसा कुछ होना चाहिए था. ये देखिए. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 times I executed. Okay, and 5 times it printed starting from 2. Okay, so initial value of a was 1. It performed the updation. उसको 2 बना दिया इसने. 2 is less than 20. रिटर्न कर returned. ठीक है. आपने you ask for one time ना, तो हो गया. अगेन यू आस्क फॉर प्रिंट नेक्स्ट इटर. ठीक है. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ self dot a was 2. 2 is less than 20. It will make it into 3. इसको 3 कर देगा and then it will return. तो 3 आंसर आ गया. तो 2 आ गया फिर 3 आ गया. अगेन इफ यू कॉल प्रिंट नेक्स्ट इटर. इफ यू अगेन कॉल इट तो क्या कर देगा? 3 is less than 20. 3 plus 1 4. It will return 4 and so on. यदि आपको apart from that if you want to use a loop for it, ठीक है, you have to use a loop for x in it.
ठीक है, या आप ले लो आई, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। फॉर आई इन इटरेबल ऑब्जेक्ट, प्रिंट आई, प्रिंट आई, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है, ये प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इट प्रिंटेड। तो पहले तो इसने नेक्स्ट वाला प्रिंट कराया, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये इसने ये वैल्यूज प्रिंट करवाया। एंड देन इट स्टार्टेड फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 तक इसने प्रिंट करवाया। तो क्या हुआ 21 तक, वाई इट प्रिंटेड टिल 21? देखिए क्या हुआ, आई एम हैविंग, ये आखिरी कंडीशन चेक करना, when the value of self dot a become 20, तो it is checking whether 20 is less than equal to 20। हाँ, 20 is less than equal to 20, इक्वल टू का साइन है ना। यदि इक्वल टू का नहीं होता तो ये 21 प्रिंट नहीं होता, बट यू आर हैविंग एन इक्वल टू साइन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो उसने 20 करा, 20 के बाद 21 कर दिया, एंड देन 21 इज रिटर्न, इट प्रिंटेड 21। फाइनल आंसर 21। सो यू कैन अप्लाई a loop also over iterable object. You can apply a loop over iterable object. You can print it one by one also. You can apply a loop also. All this you can do over the iterable object. All right, ये कोड है आपका। ठीक, फाइन। हियर ऑल्सो आई एम हैविंग अ कोड। ठीक है, क्या कोड है, लेट्स चेक आउट दिस कोड, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यू क्रिएटेड अ क्लास टेस्ट। ठीक है, देन यू used init method where you assigned a limit value. You used init method and you assigned a value limit. Then you have iterable object, तो उसमें आपने उसका वैल्यू यू टुक एस 10, यू टुक द वैल्यू एस 10। ओके, यू टुक इट एस 10, फाइन, ले लिया। देन टू मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, टू मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ये आपका नेक्स्ट मेथड बनाया उसने, इट क्रिएटेड अ नेक्स्ट मेथड। ओके, ठीक है, x इक्वल टू सेल्फ x, कोई इशू नहीं है। आई एम हैविंग अ सेल्फ x हियर, दैट इज इट्स वैल्यू इज 10। इफ x इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट लिमिट, स्टॉप इटरेशन। सो यदि x का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन द लिमिट, व्हाट इज द लिमिट वैल्यू? लिमिट वैल्यू आई डोंट नो, अभी तो लिमिट वैल्यू आई विल पास जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का। सो आई विल पास द लिमिट वैल्यू, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में आएगा, तो दैट आई विल पास। तो करंटली आई डोंट हैव लिमिट वैल्यू, बट इट इज सेइंग if the value of x यानी कि ये self dot x is greater than the limit, stop, नहीं तो increment the x, यानी increment करो self dot x को, करते चले जाओ। and here is the value 15, I gave the limit value as 15, so limit value is 15 and 5 and 10 is not greater than 15, so iteration will not stop, it will update the value of x. Now it will become 11, it will print 11, it will return 11. Okay, it will return 11. So for the first iteration the result is 11। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन द योर आंसर इज 11। ठीक है, आप बोलोगे सर वो वहां पर पहले 10 कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग 10, सर इनिशियल वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है सेल्फ की। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, x इक्वल टू सेल्फ x करा ना, हटाओ इसे, डोंट डू दैट, इसका जरूरत ही नहीं था। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्फ डॉट एक्स, एंड ये हो गया, एंड सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स, यही करिए आप। ठीक है, लेट मी रन द कोड। देखिए, रिटर्न एक्स, एक्स नहीं है, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स, ये करिए आप, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स, ये करिए। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11, वो भी गड़बड़ घोटाला है, वो एक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स करने पर वो इनिशियल वैल्यू प्रिंट करता है 10, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, आई रिमूव्ड इट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। डोंट असाइन x इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स, नो, एंड रिटर्न एक्स, ऐसा मत करो, सेल्फ डॉट एक्स को ही रिटर्न करो आप।
ओके, सो मैं क्या हुआ, देखिए, इनिशियलाइजेशन आई ऑलरेडी डिड, ठीक है, इनिशियलाइजेशन आई ऑलरेडी डिड, ठीक है, लिमिट का वैल्यू आएगा कहीं से नीचे, अभी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा ना, वहां से आएगा। इटरेबल आई मेड, माई वेरिएबल एक्स इज इटरेबल, इट्स वैल्यू इज 10, ठीक है। इन द नेक्स्ट ऑपरेशन, in the next operation I am saying, if the value of self dot x is greater than limit, then stop, else update the value of x. So I'm updating the value of x, initially it is 10, तो 10 को उसने 1 करा, 10 प्लस 1 तो इट इज 11, सो इट रिटर्न 11, ठीक है, इट रिटर्न 11, ऐसा करा, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस कोड अवे, एंड यहाँ तक इतना लेता हूँ बस मैं, और उसको नीचे में एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। Here I am going to do, and let me take print, then I am going to take ये print next iter, ठीक है, print and I am going to take it next iter, ये लीजिए, run the code, so it will print 11, है ना, आपने वन टाइम नेक्स्ट करा है ना, तो it will print 11, ठीक है। वो 10 था, तो 10 प्लस 1 it become 11 and it is returned. Now if you again use this statement copy, तो नाउ इट विल अगेन चेक कि 11 जो है, 11 इज ग्रेटर देन 15, बिकॉज यू हैव गिवन अ लिमिट 15, ठीक है, तो 15 नो, तो अगेन इट विल अपडेट योर वैल्यू ऑफ 11, इट विल बिकम 12, देन इट विल प्रिंट 12, प्रिंट कर देगा वो। लेट मी रन द कोड अगेन, अब उसने 12 प्रिंट कर दिया, 11 के बाद 12, फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ नेक्स्ट को, नेक्स्ट कॉपी करके फिर से पेस्ट करो, नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 13, अगेन आई एम पेस्टिंग, इट विल प्रिंट 14, अब क्या लफड़ा होगा, इट विल चेक, अभी वो देखेगा 14 है ना, हाँ 14 इज नॉट ग्रेटर देन 15, वो 15 अभी फिर प्रिंट कर देगा, 15 तक आ गए अपन, स्टिल टिल 15 वी केम, नाउ अब वो देखेगा, इज 15 ग्रेटर देन 15, नो, स्टॉप इटरेशन, तो लेट मी पुट वन मोर नेक्स्ट, देन सी व्हाट हैपेंस, लेट मी रन द कोड, अरे उसने 16 प्रिंट कर दिया, इट प्रिंटेड 16, उसने रेज नहीं करा इटरेशन, वेयर इज माई एल्स स्टेटमेंट, यहाँ एल्स तो लगाया ही नहीं मैंने, वेयर इज माई एल्स, if this thing I need to raise, and then I need to write this thing, rest of the concepts under else statement, ये else में आना चाहिए था, it should comes under the else statement, ऐसा होना चाहिए था। let me run the code, indentation return self dot x, okay, ये रिटर्न तो यार वही करता है x को, it will return the value of x ओनली, यानी कि जो मैं डिलीट कर गया, x इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स, उसी को रिटर्न करेगा ये, x को, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स को नहीं कर रहा, रिटर्न इंडेंट डज नॉट मैच इंडेंटेशन लेवल, अब वो इसका इंडेंटेशन का लफड़ा है, ये इंडेंटेशन ये इसके कारण हो गया है सब, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये इंडेंटेशन का इशू, अभी हो सकता है और एरर आ जाए इंडेंटेशन वाला, टैब्स एंड ये इंडेंटेशन का एरर है, वो जस्ट फॉरगेट अबाउट द इंडेंटेशंस, ठीक है, जहां तक मेरा लॉजिक था उसको नहीं करना चाहिए था प्रिंट, ठीक है, लेट मी मेक दिस कोड, फिर से बना देता हूँ, क्लास टेस्ट, ओके, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, चेंजेस कर लेंगे हम पूरा, चलो यार कॉपी करने में इशू ना हो जाए, ठीक है, एनीवेज क्लास टेस्ट def अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर 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 सेल्फ कॉमा लिमिट, ओके, ये करा, एंड आई एम डिफाइनिंग सेल्फ डॉट लिमिट इक्वल टू लिमिट, ठीक है, ये हमने करा, सेल्फ डॉट लिमिट इक्वल टू लिमिट, ठीक है, यानी जो भी लिमिट के वैल्यू आएगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, वो हम इसको यहाँ असाइन कर देंगे, ठीक है, हो गया, देन आई एम गोइंग टू मेक इटर, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा इटर, ठीक है, बना लेते हैं, सो डी एफ
underscore underscore iter underscore underscore self. Now take any variable self dot dot a equal to 10, ठीक है, ये कर दिया, एंड रिटर्न सेल्फ, इसको मैंने रिटर्न करो, असाइन तो करना पड़ेगा ना मुझे वैल्यू। तो आई हैव मेड एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू असाइन करा, उसको रिटर्न करवा दिया। देन नेक्स्ट वाला मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेक्स्ट वाला, सो डी एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट, नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ये करा मैंने, ठीक है, आई मेड इट सेल्फ। फिर क्या करना है मुझे, व्हाट आई विल बी डूइंग, इफ इफ योर सेल्फ डॉट ए इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट लिमिट, ओके, ऐसा हो गया, तो क्या करना है आपको, रेज इटरेशन, रेस स्टॉप इटरेशन, ठीक है, रेस स्टॉप इटरेशन, ठीक है, एल्स में, एल्स सेल्फ डॉट ए इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस वन, उसको बढ़ाते जाओ, एल्स में नहीं करना है, ठीक है, एंड देन यू विल से क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न रिटर्न सेल्फ डॉट ए, बस। अब ऑब्जेक्ट बना दो, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा डू दिस थिंग, ये सारा चीजें हम करते हैं, ये सारा चीजें हम करते हैं, लेट मी रन द कोड, ठीक है, लेट मी रन द कोड, ये देखिए इट गिव द आंसर, बट उसने आखिरी वाला आंसर और दे दिया 16 तक का, यदि मुझे आगे भी इटर करना है तो ये कर देगा। देखो उसने क्या करा, स्टॉप इटरेशन रेस कर दिया उसने, हो गया, ये एरर नहीं आया, ये एरर नहीं आया है, ये वही आया है दैट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, इट इज नॉट एन एरर, आई ओनली टोल्ड है ना, आई ओनली टोल्ड ना कि when the value of a become more than limit stop iteration, रेजिस्ट, तो इसने रेस करा एरर, मैंने ही बोला था इसे कि रेस करना। सो इनिशियल वैल्यू वाज 11, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, देन 16, हुआ 16, जैसे ही आपने उसको आगे फिर से नेक्स्ट करा तो 16 इज ग्रेटर देन 15, उसने स्टॉप इटरेशन रेस कर दिया, इट रेस द स्टॉप इटरेशन, एंड दिस इज हाउ इट रेस्ड स्टॉप इटरेशन, बोला रुक जाओ, नो, रेस्ट कांट बी पॉसिबल, ओके, यही मैं चाह रहा था, वो उसने रेस कर दिया स्टॉप इटरेशन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, okay, so this shows the use of raise here iteration, all right, okay, so